Hello everyone, have a very beautiful day. I am Somiranjan Naik, Assistant Professor of Mechanical Engineering at Vedant Institute of Technology. As we already discussed about the transmission system, the single plate clause already I have discussed. You can able to go to the previous classes. Today we are going to discuss about multi-plate clutch. Why we regard it as a single plate clutch? I already discussed that. There is only a single plate, clutch plate is only single, one friction plate, one clutch plate and only one pressure plate. But here there is name suggested that multi-plate means more than one number of plate are there over here in the transmission system of multi-plate clutch. So multi-plate clutch, as the name suggested, that it consists of a multiple plate or friction. Works similarly in the above fashion. Above fashion means the similarly means as compared with the single plate clutch, the working principle is same. The multiple discs offer more area to be the contact with each other. More the number of plate, more the torque transmission capacity. The first is the multiple discs offer. Multiple discs means number of the contact plate of the multiple plate clutch. Offer more area to be in contact with each other. More area means a single plate containing only one area. When there is more number of plate, that means more number of area. That's why it is said to be that multi discs have offer more area. Next is more the number of plate, more the torque transmission. Single plate clutch have only capability to transmit less amount of torque from the engine to the gearbox or the transmission system to the rear wheel. Whereas when more than one number of plate are attached to each other, at that time what's happened? The more number of torque will be transmitted. For example, if a single plate clutch, only one plate transmit suppose 20 horsepower of power, maybe only 20 torque Newton meter. In a multi-plate clutch, if you take about 2 to 3 multi-plate instead of single plate, according to the single plate only 20 Newton meter, 4 number of plate if you arrange is going to be 18 Newton meter. If you go 5 number of plate is going to 100 Newton meter. That means amount of plate is increases, the torque transmission is increases. The last line is the more the number of plate, the more the transmission torque capacity will be increases in the vehicle. This is a figure of the multi-plate clutch. What's happened over here? पहली चीज ये कि ये फ्लाईव्हील है, ये वाला जो चीज है ये फ्लाईव्हील है. तो फ्लाईव्हील कनेक्टेड होता है इंजन से. ये ड्राइविंग शाफ्ट है और ये ड्रिवन शाफ्ट है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट व्हाट इज ड्राइविंग शाफ्ट, what is driven shaft. Driving shaft means the shaft which get the power from the engine. The shaft which generally rotate. Initially it is the first shaft which is going to get rotate, getting the power from the engine through the flywheel. The driven shaft means it is only get rotate by means of the help of driving shaft. Driving shaft अगर एक बार घूमता है, उसी के रेस्पेक्ट में जो शाफ्ट घूम रहा है उसे ड्रिवन शाफ्ट कहते हैं. ड्राइविंग शाफ्ट टॉर्क लेता है इंजन से और ड्राइविंग शाफ्ट का एनर्जी जो टॉर्क है वो ड्रिवन शाफ्ट को जाता है. सिंपल फंडामेंटल उसको समझ में यही है. मतलब ड्राइविंग किसको कहते हैं और ड्रिवन किसको कहते हैं? जो ड्राइव कर रहा है वो ड्राइविंग है, जो एनर्जी पा रहा है वो ड्राइविंग है. उसी से जो एनर्जी मिल रहा है किसी और को उसे हम ड्राइवर कहते हैं या उसे हम कहते हैं ड्रिवन शाफ्ट. तो उसके एनर्जी से वो मूव कर रहा है. फॉर एग्जांपल लाइक अगर एक इंटरनेट सर्वर है तो इंटरनेट जो सर्वर है वो तुम्हारा ड्राइविंग हो गया. हम जब उस इंटरनेट सर्वर से इंटरनेट एक्सेस करते हैं वाईफाई से, हम खुद बन गए ड्रिवन, उससे हम एक्सेस कर रहे हैं. तो ड्राइविंग शाफ्ट किसे कहते हैं? जो इंजन से एनर्जी लेता है. और ड्रिवन शाफ्ट कौन है? जो ड्राइविंग शाफ्ट से एनर्जी लेता है. और ड्रिवन शाफ्ट कहां कनेक्टेड है? ये आउटपुट शाफ्ट है. ड्रिवन शाफ्ट एनर्जी किसको देता है? रियर एक्सिल, थ्रू द कनेक्शन ऑफ गियर बॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट एंड डिफरेंशियल ऑफ द व्हील. नेक्स्ट इज फ्लाईव्हील इज कंप्लीट, ड्रिवन शाफ्ट इज कंप्लीट, ड्रिवन शाफ्ट इज कंप्लीट. नेक्स्ट वी गोइंग टू द प्रेशर प्लेट. यहां पे लिखा नहीं गया है लेकिन ये प्रेशर प्लेट है. यहां से शुरुआत करके ये जो प्लेट है, नीचे भी एक डायग्राम जो है नीचे, ये प्रेशर प्लेट है. ओके,
ये कनेक्टिविटी प्रेशर प्लेट है। ओके, नेक्स्ट इज यहाँ पे जो सिलेंडर टाइप छोटा छोटा 3 3 6 है वो स्प्रिंग है, नीचे 3 ऊपर 3 वो स्प्रिंग है। उसके बाद ये जो बीच वाला छोटे छोटे है उसमें जो हैचिंग लाइन से ऊपर 3 है और नीचे 3 है, उसको हम फ्रिक्शन प्लेट कहते हैं। जो सिंगल प्लेट क्लच में एक फ्रिक्शन प्लेट था, तो मल्टीप्ल प्लेट में जितना प्लेट रहेगा उसी हिसाब से फ्रिक्शन प्लेट रहेगा। तो यहाँ पे 3 प्लेट है, 1 2 3। दिस 3 प्लेट्स आर नोन एज प्लेट अटैच्ड विद ड्रिवेन शाफ्ट। दिस इज द क्लच प्लेट, दिस 3 आर द क्लच प्लेट। यहाँ पे 3 क्लच प्लेट है, 1 2 3। उसी हिसाब से फ्रिक्शन प्लेट भी 1 2 और 3 है। तो फ्रिक्शन प्लेट का काम क्या है, वो 3 क्लच प्लेट को एक साथ कनेक्टेड करना नहीं देता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है और इंटरकनेक्टेड को स्मूथ करता है। आफ्टर दैट जो प्रेशर प्लेट का काम क्या है, जो एक साथ ये जो स्प्लिंड शाफ्ट है, जो मैं पहले बता चुका हूं, मतलब वहां पे स्लॉट होता है शाफ्ट में, स्प्लिंट शाफ्ट कहते हैं। ये बीच वाला स्प्लिंट शाफ्ट है और ये जो 3 है ये स्लॉट्स हैं। जब स्लॉट्स है, जब आप क्लच प्लेट दबाएंगे मतलब वहां क्या होता है, डिसएंगेज होगा, तो शाफ्ट पीछे मूव करेगा और ये जो प्रेशर प्लेट है वो पीछे मूव करेगा। जब प्रेशर प्लेट पीछे मूव करेगा ड्यूरिंग द डिसएंगेजमेंट, क्लच जब आप दबाएंगे तब क्या होगा, जो कनेक्टेड है प्रेशर प्लेट में टोटली फ्रिक्शन प्लेट और क्लच प्लेट, वो भी पीछे चले जाएंगे, फ्लाई व्हील से डिसएंगेज हो जाएंगे। उसी प्रकार जब तुम क्लच छोड़ देते हो एंगेजमेंट के टाइम पे, बाय मींस ऑफ स्प्रिंग एक्शन, स्प्रिंग इसीलिए है क्योंकि वो ओरिजिनल पोजीशन को लेने के लिए, ओरिजिनल पोजीशन को लाने के लिए। तो स्प्रिंग का काम क्या होता है ना, जब तुम क्लच को छोड़ देते हो वो एंगेज हो जाता है। एंगेज का मतलब क्या है, जो प्रेशर प्लेट बाहर चला गया था वो अंदर आता है बाय मींस ऑफ शाफ्ट मूवमेंट। उसके बाद जो अटैच्ड है तीन प्लेट, क्लच प्लेट और फ्रिक्शन प्लेट, वो भी एक साथ अंदर आते हैं because they are attached to the pressure plate and they connected with the flywheel, then torque will transmitted. This is a full function and working principle of a multi-plate clutch. Now it's time to look over the video. This is a short animated video. First of all, I want to say about the different type of nomenclature of this. Engine flywheel, ये जो ब्लैक कलर की है ये फ्लाईव्हील है, जो पिक्चर में बता चुका हूं। ये इंजन शाफ्ट है और इसको कहते हैं ड्रिवेन शाफ्ट। ड्राइविंग शाफ्ट इसे कहा जाता है और ये है ड्रिवेन शाफ्ट। ड्राइविंग शाफ्ट इंजन शाफ्ट है जो इंजन के साथ कनेक्टेड है। ये बियरिंग है, बियरिंग ओनली फॉर रिड्यूस द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन लाइनिंग यहाँ पे है, ये जो ब्लैक कलर का है यहाँ पे फ्रिक्शन लाइनिंग है। उसके बाद ये क्लच प्लेट है, यहाँ पे 1 2 3 येलो कलर लाइन क्लच प्लेट है। प्रेशर प्लेट में बोला था डायग्राम में, ये वाला प्रेशर प्लेट है, ब्लैक कलर प्रेशर प्लेट। आफ्टर दैट ये तुम्हारा क्लच पेडल है, ये तुम्हारा क्लच फॉर्क मतलब जस्ट लाइक ए अरेंजमेंट टू गेट अरेंज्ड इन बाय मींस ऑफ 2 और 3 नंबर ऑफ पेयर्स। सिर्फ ये एक जॉइंट है। आफ्टर दैट स्लीव इस शाफ्ट के साथ जॉइंट होता है। पहले शाफ्ट मूव करेगा, उसके बाद प्रेशर प्लेट मूव करेगा, उसके बाद जाके मल्टीप्लेट क्लच मूव करेगा विथ द हेल्प ऑफ द फ्रिक्शन प्लेट, एक साथ मूव करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रेशर प्लेट पहले मूव करेगा शाफ्ट के मूवमेंट से। पहले तुम क्लच को यूज करोगे, उसके बाद शाफ्ट मूवमेंट करेगा, उसके बाद प्रेशर प्लेट मूवमेंट करेगा। नेक्स्ट ड्रिवेन शाफ्ट, यहाँ पे जो है गियर बॉक्स शाफ्ट, मतलब ड्रिवेन शाफ्ट को गियर बॉक्स शाफ्ट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये कनेक्टेड है विद द गियर बॉक्स। उसके बाद गियर बॉक्स को जाएगा टॉर्क, गियर बॉक्स के बाद कहाँ जाएगा, द यूनिवर्सल जॉइंट प्रोपेलर शाफ्ट, देन गो टू डिफरेंशियल, देन टू रियर एक्सल। So now we're going to just watch this video. This is known as disengagement. First is a disengagement, move backward, then engagement, move forward, connected. Disengage, then engagement. Disengagement, then again engagement. In this way the torque is transmitted. When there is engagement, again you watch the video. When there is a engagement, is a yellow line.
The engagement though no power torque transmitted. When the engagement yellow line is there, power transmitted. Disengage, engagement, power transmit, yellow line. This is the working principle for animation of the multiplate clutch. Last time you watched this video last time. Next we go to the advantages of multiplate clutch and disadvantages of multiplate clutch. उसका एडवांटेजेस क्या है, हम क्यों सिंगल प्लेट यूज नहीं करेंगे. मैं पहले क्लास में बोल चुका था कि द सिंगल प्लेट क्लच इज नॉट गेट यूज्ड बाय मींस ऑफ एनी प्रेजेंट व्हीकल वेयर टॉर्क इज नॉट ट्रांसमिटेड सो मच. दैट इज द ओनली रीजन बिहाइंड इट. नेक्स्ट इज द एडवांटेज ऑफ मल्टीप्लेट क्लच इज इंक्रीज द अमाउंट ऑफ टॉर्क. जो पहले बता चुका हूँ, सिंगल प्लेट क्लच इज लेस टॉर्क ट्रांसमिटेड. मल्टीप्लेट क्लच अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ प्लेट द टॉर्क इज ट्रांसमिटेड. जितना नंबर ऑफ प्लेट होगा उतनी नंबर ऑफ टॉर्क ट्रांसमिटेड होगा. डिक्रीज ऑफ पेडल इफेक्ट. डिक्रीज मतलब सिंगल प्लेट क्लच का क्या था ना, ज्यादा फोर्स और इफर्ट डालना पड़ता था क्लच को एंगेज डिसएंगेज करने के लिए मैन्युअली. लेकिन मल्टीप्लेट क्लच में थोड़ा एनर्जी डिक्रीज हो जाता है, मतलब इफर्ट थोड़ा कम यूज करते हैं, इसीलिए ये उसका और एक एडवांटेज है. डिक्रीज द वेट ऑफ द क्लच. इसका वेट कम हो जाता है. अब वेट कैसे कम होगा, अगर सिंगल प्लेट क्लच का वेट है और मल्टीप्लेट का वेट कैसे कम होता है, ये इसीलिए कम हो जाता है क्योंकि क्लच प्लेट का वेट को कम करके एडजस्ट कर लिया जाता है. सिंगल प्लेट एक क्लच का ज्यादा वेट रहता है क्योंकि एक क्लच को ट्रांसमिट करना पड़ता है पावर. मल्टीप्लेट क्लच में क्या होता है ना, एक से ज्यादा प्लेट क्लच प्लेट लेस वेट वाला को कनेक्ट कर देते हैं और वो सेम से ज्यादा काम करता है. फॉर एग्जांपल अगर सिंगल प्लेट क्लच का वेट 10 kg है, तो अगर 10 kg जितना टॉर्क ट्रांसमिट करता है सिंगल प्लेट में, अगर मैं 1 kg के हिसाब से एक प्लेट को लगा दूंगा, 5 kg का कंप्लीट क्लच अरेंजमेंट हो गया, लेकिन उसका जो टॉर्क ट्रांसमिटेड होगा सिंगल प्लेट से ज्यादा होगा क्योंकि मोर नंबर ऑफ सरफेस एरिया, मोर नंबर ऑफ क्लच प्लेट आर देयर. दैट इज अनदर एडवांटेज. नेक्स्ट इज डिक्रीज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द क्लच. डिक्रीज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मींस लेस मूवमेंट विल बी टेक्स प्लेस टू एंगेज एंड डिसएंगेजमेंट. दैट इज अनदर एडवांटेज. व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ द मल्टीप्लेट क्लच? उसका डिसएडवांटेज क्या है? जो इसका डिसएडवांटेज है वो ज्यादा इतना बड़ा डिसएडवांटेज नहीं है कि उसको हम ओवरकम नहीं कर सकते. ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, ऑब्वियसली एक्सपेंसिव होगा क्योंकि एक से ज्यादा प्लेट यहाँ पे यूज किया जाता है. नेक्स्ट इज क्लच प्लेट आर हेवी. मतलब हेवी मतलब क्या है ना, यहाँ पे लिखा गया है डिक्रीज द वेट ऑफ द क्लच, यहाँ पे लिखा गया है मल्टीप्लेट क्लच आर हेवी. इसका मतलब यही है कि डिक्रीज द वेट ऑफ द क्लच का मतलब यही है कि क्लच का जो वेट है, क्लच प्लेट का जो वेट है उसका वेट कम हो जाता है, लेकिन कंप्लीट क्लच अरेंजमेंट, प्रेशर प्लेट, ड्राइविंग शाफ्ट, उसके बाद कनेक्टेड ऑफ 5 नंबर ऑफ मोर नंबर ऑफ मल्टीप्लेट क्लच, सभी को मिला देने से उसका वेट बढ़ जाता है. तो दिस इज अ डिसएडवांटेज ऑफ द मल्टीप्लेट क्लच. यहाँ पे मल्टीप्लेट क्लच एप्लीकेशन कहाँ पे, कहाँ इसको यूज किया जाता है? मेनली जहाँ पे टॉर्क ज्यादा ट्रांसमिट होता है. ओके, when there is requirement of the more number of torque to get transmitted in the vehicle, at that time the multiplate clutch is used. So where it is used? In the racing vehicle, in the racing automobile. Next, where you can able to use about it? In our bigger and heavy vehicle. In heavy vehicle means trucks, JCBs, payload type vehicles, passenger carrying buses. Where there is more number of power, torque is required, at that time the multiplate clutch used in there. Okay, this is all about today's class, multiplate clutch. In the next class we are going to study about the cone clutch. What about the cone clutch and what are the advantage of cone clutch, disadvantage of cone clutch, application of cone clutch, working principle of cone clutch. So first I already discussed about single plate clutch. If you want to go through the class in my previous video, you can go through it. Today it is a multiplate clutch. Next we are going to cone clutch. So up to it, stay tuned for the next video. Thank you very much.